Hi guys, this is Darshan. It's been a long holiday and finally we meet again. So today we are going to discuss a very magical topic. Can you guys guess it? F-O-R-C-E. That is force, right? So, what do you guys know about force? You guys know that it's a vector quantity, right? So, what's a vector quantity? What exactly is a vector quantity? Well, a vector quantity is something that has magnitude as well as direction. If any quantity has both magnitude and direction, that's called a vector quantity. What exactly is magnitude and direction? If I may translate this in Hindi, एक ऐसा चीज जो तुम्हें सिर्फ इतना बताए कि वो है कितना. मैंने पूछा तुम्हारी हाइट कितनी है? 6 फुट. तुमने ये थोड़ी बोला कि 6 फुट टुवर्ड्स ईस्ट, 6 फुट टुवर्ड्स साउथ. नहीं, बस इतना बताया कि 6 फुट है. That's a scalar quantity that has only magnitude. But then what's a vector quantity? Let's say I told you applied a force, a pushing force. Now, well, that's a topic. A pushing force or a pulling force. So force has two types. When do we say there is a force? We say there is a force. Let's say this is an object. We put some force into it. A pushing force. I pushed it, right? So what happened here? It was here. It went into this direction. Right? And if I say it was here and I pushed in this direction, this was the force, right? And you all guys know that this is nothing but the representation of a vector, right? You can see this force is different from this force. If we assume the magnitude of this force, like if I push this in the same amount with the same intensity, I pushed B. Okay. For some of you, if I may translate, अगर मैंने इसको सेम इंटेंसिटी के साथ A की तरफ पुश किया था और सेम इंटेंसिटी के साथ B की तरफ पुश किया, देखो सेम डिस्टेंस को कवर किया है, लेकिन मैंने इसको इस डायरेक्शन में पुश किया और मैंने B को इस डायरेक्शन में पुश किया. सो दे आर डिफरेंट बिकॉज द डायरेक्शंस आर डिफरेंट. We also have another type of force. That's a pulling force, right? What's a pulling force? You pull it. Let's say I pulled it. It went in a different way. Let's say it was here and it was a C force and it was a pulling force. Okay. Let's say I pulled it once again in this direction. Let's say this is the force. It's a D force. So you got to know that force are of two types, a pushing force and a pulling force, right? Force is a vector quantity, so we represent them in vectorial forms. That's it, right? What is vector? We'll go on it in a different class, in a different environment. Okay, this class is dedicated
टू फोर्स। नाउ फोर्स के और दो टाइप्स हैं, एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब समझना इनके बारे में ध्यान से। जब मैं इसको पुश कर रहा था तो मैंने यहाँ पे इसको टच किया ना, मैंने छुआ इसको ऐसा, राइट? या फिर मैं जब इसको पुल कर रहा था तब भी मैं रस्सी को ऐसे खींच रहा था, है ना? लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के केस में let's say I have some charges, okay, it's a positive charge, it's another positive charge, what will happen? They will repel, right? वो लोग रिपेल करेंगे ऐसे। लेकिन क्या किसी ने इसको धक्का दिया? लाइक कोई आके इसको थोड़ी ना धक्का दे दिया कि उस तरफ चल गया, या फिर कोई आके इसको थोड़ी ना धक्का दे दिया कि उस तरफ चल गया। वो हमें पता नहीं चला ना कि कौन धक्का दिया है कौन नहीं दिया है। अगर सिमिलरली हम देखें दो अनलाइक चार्जेस, राइट, तो दे विल अट्रैक्ट इस तरीके से। लेकिन कोई खींचने वाला यहाँ पे था क्या? ये इसको खींच लिया और ये इसको खींच लिया, इसलिए दोनों ऐसे हो गए और ये दोनों ऐसे हो गए। लेकिन कोई दिख रहा है तुमको बीच में? यहाँ पे नहीं, इमेजिन करने बोल रहा हूँ। व्हेन इट कम्स टू अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, सेम गोज विथ मैग्नेट्स, राइट? व्हेनेवर देयर इज अ नॉर्थ पोल एंड देयर इज अ साउथ पोल, you know north pole and south pole attracts, right? And when it comes to north and north, what will happen? They will repel, right? So what exactly is happening between them? कोई तो धक्का दे नहीं रहा है इनको, और ना ही साउथ पोल के केस में कोई खींचने वाला था। कुछ था क्या? कोई रस्सी भी नहीं थी, राइट? तो हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन केस ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और वो हम कैसे करेंगे? हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी। हम मदद लेंगे फील्ड कॉन्सेप्ट की। तो फील्ड कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्लियर रखना सबको, क्यों आया? ताकि हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को एक्सप्लेन कर सके। ध्यान रहे। So let's start with field concept. What exactly is field concept? तो एक राजा की बात करेंगे। कहानी राजा की है तो राजा से स्टार्ट होगी ना। What is a king without a kingdom? क्या राजा कुछ भी है एक किंगडम के बिना? नहीं है, राइट? A king is a king when it has a kingdom, right? Let's say we have another king and there is another kingdom. एक और राजा है और एक और उसकी किंगडम है, राइट? अब मुझे ये बताओ, कब ये राजा और ये राजा इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी या झगड़ा होगा? When will that happen? जब इन दोनों की किंगडम्स इंटरसेक्ट करेंगे। सोचो, ये अपना किंगडम बढ़ाते 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 आगे ले आया। थोड़ा लालची राजा था, ब्लैक वाला। तो अभी ये व्हाइट किंगडम में आ चुका है। तो अब यहाँ पे लड़ाई होगी, राइट? और कब लड़ाई होगी? मानो ये राजा सीधा इसके राज आ गया, इसके राज में आ चुका है, तो अब लड़ाई होगी। देखो, तो ये राजा और ये राजा के बीच में इंटरेक्शन तभी होगा जब या तो इनके किंगडम्स इंटरसेक्ट करेंगे या तो एक राजा दूसरे के किंगडम में आ जाता है। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल नेचर है फील्ड कॉन्सेप्ट का। तो ये राजा है कौन? ये राजा या तो एक मास है, राइट? It's a mass, a charge और a magnet। मतलब या तो ये राजा एक मास है, या तो ये राजा एक चार्ज है, या तो एक राजा ये एक मैग्नेट है। मतलब मास एक राजा है, चार्ज भी एक राजा है और मैग्नेट भी एक राजा है। यानी कि दुनिया में जितने भी मासेस हैं, जितने भी चार्जेस हैं और जितने भी मैग्नेट्स, दे ऑल आर किंग्स। सो व्हाट इज अ किंग विदाउट ए किंगडम? तो हर किंग का एक किंगडम होगा, राइट? यानी कि मास का भी
एक किंगडम होगा, राइट। लेट्स से दिस इज माय मास 1, दिस इज माय मास 2। तो ये मास का भी एक किंगडम होगा, ये मास का भी एक किंगडम होगा। लेट्स से आई हैव 2 मैग्नेट्स, ओके। मेरे पास एक ये मैग्नेट है और ऐसा मैग्नेट, ठीक है, दिख रहा तुम लोग को। तो मेरा सवाल ये है, अभी तुम लोग को तो पता चल गया कि ये किंगडम और ये किंगडम के बीच में इंटरेक्शन तभी होगा जब इनके किंगडम से इंटरसेक्ट करे, या तो ये मास उठ के इधर आ जाए, राइट। तो ये किंगडम ही फील्ड है। व्हाट इज फील्ड? नथिंग बट जस्ट द किंगडम ऑफ द किंग, इन दिस केस दैट्स मास। मेरा सवाल ये है कि ये जो किंगडम है ये एक दूसरे राजा का है, दूसरे प्रकार के, दूसरे प्राणी के राजा का है। ये एक मैग्नेट किंग है और ये मैग्नेट का किंगडम है। तो क्या ये लोग कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे? और करेंगे तो इनके बीच में लड़ाई होगी? चलो एक और एग्जांपल देते हैं। सोचो ये इंसानों का राजा है, ये कुत्तों का राजा है। कुत्तों की राजा कुत्तों के साथ लड़ाई करेगा ना, इंसानों के साथ थोड़ी करेगा। समझ रहे हो बात को? यानी इन लोग के बीच में कुछ भी नहीं होने वाला। ये इधर जाए उधर जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी आ जाए, हम ऐसे ही तो रहते हैं। लेकिन अगर एक कुत्ता आ गया इधर, तो क्या होगा? ये तो भौंकेगा, है ना। अगर ये कुत्ता इधर आ गया तो ये तो भौंकेगा, या फिर ये कुत्ता इधर आ गया तो ये सब घेर के इसको मारने को निकलेंगे। मतलब एक मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में ही इंटरेक्शन होगा, एक मास और मास के बीच में ही इंटरेक्शन होगा, एक चार्ज और एक चार्ज के बीच में ही इंटरेक्शन होगा, उनके किंगडम्स के बीच में ही इंटरेक्शन होगा। सो हमने क्या क्या किया? लेट्स सम इट अप। इफ आई हैव अ मास, then it will only interact with another mass, right? Another field of another mass. ये फील्ड है मास 1 का, ये फील्ड है मास 2 का। तो इनके फील्ड्स इंटरसेक्ट या इंटरैक्ट करेंगे तभी यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा इंटरेक्शन होगा, ठीक है। अगर ये एक मैग्नेट है तो एक मैग्नेट के साथ ही इंटरसेक्ट या फिर इंटरेक्शन होगा। अगर ये एक चार्ज है तो बस चार्ज के साथ ही इंटरेक्शन होगा। अगर चार्ज मास के फील्ड में चल जाए तो कुछ नहीं होने वाला। अगर ये कुत्ता इंसानों के जगह में चल जाए तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर कुत्ता दूसरे कुत्ते के इलाके में चल गया तब हो जाएगी भागम दौड़। समझ गए? तो ये था फील्ड कॉन्सेप्ट का बेसिक्स। अब ये समझते हैं कि वो जो इंटरेक्शन होगा वो किस तरीके का होगा। पुशिंग वाला फोर्स होगा या पुलिंग वाला फोर्स होगा। चलो मास से शुरुआत करते हैं कि मास क्या बोलता है। अब अगर मेरे पास दो मासेस हैं, न्यूटन क्या बोले थे? न्यूटन चाचा को ले आते हैं। न्यूटन चाचा की जरूरत पड़ेगी अभी, राइट। न्यूटन चाचा बोले थे कि मासेस अट्रैक्ट, मतलब मासेस के बीच में बस एक ही तरीके का फोर्स होता है। वो कौन सा फोर्स होगा? पुलिंग फोर्स, राइट। समझ रहे हो? मतलब अगर दो मासेस हैं तो इनके बीच में सिर्फ एक ही तरीके का इंटरेक्शन होगा एंड दैट विल बी अ पुलिंग फोर्स। मतलब ये ऐसा है तो इनके बीच में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर ये फील्ड्स इंटरसेक्ट कर लिए, इंटरैक्ट कर लिए, तो ये मास को खींचने लगेगा और ये मास को खींचने लगेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के तरफ बढ़ने लगेंगे। समझ रहे हो? ओके। तो अब बात करते हैं ये फील्ड होता कितना बड़ा है। फील्ड कितना बड़ा होता है? अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो हर किंग का किंगडम इन्फिनिटी तक
लंबा होता है। कितना लंबा होता है? इन्फिनिटी तक लंबा होता है। मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक किंग है तो इसका किंगडम इन्फिनिटी तक छाया हुआ है, कुछ ऐसे। हर जगह उसका किंगडम है। तो फिर तुम लोग ये सोच सकते हो कि अगर हर जगह इसका किंगडम है तो अगर एक मास छोड़ दो, मास की बात छोड़ देते हैं, अगर एक चार्ज अमेरिका में है और एक चार्ज इंडिया में है तो उनके बीच में कोई इंटरैक्शन या पुलिंग क्यों नहीं होता है, या फिर हमको क्यों महसूस नहीं होता है? वैसे ही दो मैग्नेट जब एक दूसरे से थोड़े ही करीब होते हैं तभी उनके बीच में क्यों फोर्स दिखता है, उसके बाद में क्यों नहीं दिखता है? लेट्स से विथ मासेस, राइट? मैग्नेट्स का एग्जांपल देते हैं। मैग्नेट्स से बात करेंगे हम। एक मैग्नेट ले लेते हैं, बहुत भारी मैग्नेट है, मुश्किल से ढूंढ के निकाले हम इसको। एक नेल ले लेते हैं। नेल क्या है? एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, राइट? इट्स अ मैग्नेट। इनके बीच में भी तुमको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दिखता है ना? ये नेल इधर होगा तो कुछ नहीं हो रहा है, ये नेल इधर होगा तो लग गया। क्यों? इधर है तो लग जा रहा है, लेकिन जब इधर है तो नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने तो बोला इसका फील्ड इन्फिनिटी तो चला गया है, तो फिर ये कहीं पे भी रहे तो अट्रैक्ट होकर लग जाना चाहिए। पर क्यों इधर लगने से ये लग रहा है लेकिन इधर लगने से नहीं लग रहा है? बात सिंपल है। थियोरिटिकली अगर इन्फिनिटी तक लंबा है लेकिन फिर भी एक कुछ ही डिस्टेंस तक वो एक्चुअल में हमको फील होता है या नजर में आता है। अब ये चीज को समझते हैं। लेट्स से वही किंग और किंग का एग्जांपल देते हैं, किंग और किंगडम का। ये एक किंग है, ठीक है, और ये जो किंग है, ये किंग मतलब इसका किंगडम है जो इन्फिनिटी तक छाया हुआ है, और हर किंग का एक कैपिटल होगा, है कि नहीं? तो इसका जो किंगडम है ये इन्फिनिटी तक छाया हुआ है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा पावर इसके कैपिटल में ही होगा ना। इससे मीलों दूर किसी को अगर पूछूं मैं, अगर सोचो ये किंगडम है, इससे मीलों दूर अगर एक इंसान से मैं पूछूं कि ये इंसान से पूछूंगा, अरे तुम्हारा किंग कौन है, इसको तो पता भी नहीं होगा कौन है किंग, क्योंकि तो बहुत दूर रहता है ना किंगडम से। लेकिन अगर एक व्यक्ति किंगडम के अंदर उसके कैपिटल में, वो भी किंगडम के अंदर ही था, लेकिन अगर सोचो एक व्यक्ति उसके कैपिटल में रहता है तो किंग का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होगा ना उस पर। जो किंग क्या बोलूंगा मैं इसको, पार्टिकल बोलूं या फिर क्या है, सभा है, राइट? ये मैं बोल दूंगा किंग के रहने वाले लोग हैं, किंगडम में रहने वाले लोग हैं। तो जो लोग कैपिटल के अंदर रहते हैं उनके ऊपर किंग का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, हालांकि जो लोग बहुत दूर रहते हैं उनको तो पता भी नहीं है किंग कौन है। समझ रहे हो? सिमिलरली अगर एक मास है तो उसके पास में जो मास होगा, ठीक है, उसके साथ इंटरेक्शन ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर एक मास दूर है तो इसके साथ इंटरेक्शन कम है। यानी अगर मैं इसको सिंपल भाषा में मैथमेटिकली बोलूं, सिंपल नहीं बोलूंगा, मैथमेटिकली बोलूंगा, तो द फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई भी फील्ड ले लो, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया, चार्ज के केस में तुमको क्या फील्ड मिलेगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट के केस में तुमको क्या फील्ड मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और मास के केस में तुमको क्या फील्ड मिलेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये जो फील्ड्स हैं, चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मास के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सारे के सारे फील्ड्स कुछ
फाइनाइट डिस्टेंस तक ही हमको फील होते हैं, उसके बाद फील नहीं होते हैं। इसलिए मैं बोल दूंगा कि मेरा जो फील्ड है उसका कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है, राइट? समझ रहे हो? और ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके डिस्टेंस के साथ। मतलब अगर एक मास है, ये मास का फील्ड है, ये मास है उसका फील्ड है, किंग है उसका किंगडम है, एक और मास में ले आया, जो मास पास में होगा उस पे फील्ड ज्यादा स्ट्रांगली एक्ट करेगा। समझ रहे हो? लड़ाई ज्यादा तेज होगी, राइट? मासेस के बीच में कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्शन, यानी पुलिंग फोर्स। तो ये पुल बहुत ज्यादा जोर से करेगा। लेकिन अगर ये मास दूर चल जाए तो वो पुलिंग कम हो जाएगा, क्योंकि जितना जितना वो दूर जाएगा इंटरैक्शन कम होता जाएगा। फिर एक टाइम आएगा कि ऐसा पॉइंट आएगा कि उसके बाद इंटरैक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उस पॉइंट को मैं बोलूंगा कि कोई फील्ड नहीं है, मास का बस इतना ही फील्ड है। क्लियर हुआ? बढ़िया। तो अगर मैथमेटिकली अगर ये चीज को मैं बोलूं तो फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी अगर डिस्टेंस बढ़ता जाए तो फील्ड घटता जाएगा, और अगर डिस्टेंस कम होता जाए तो फील्ड बढ़ता जाएगा। यानी फील्ड का क्या बढ़ेगा वो हम लोग क्या देख रहे हैं? वही चीज को बोलते हैं फील्ड स्ट्रेंथ या फिर फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं हम इसको? फील्ड स्ट्रेंथ या फिर फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हम कैसे निकालेंगे? पहले समझते हैं अगर ये क्वांटिटी है तो ये क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? उस चीज को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सोचो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? और पॉजिटिव चार्ज का एक फील्ड है, राइट? बड़ा सा फील्ड है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है? ये पॉजिटिव चार्ज, मैं बोलूंगा ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड बताओ एट दिस पॉइंट, ठीक है? तो तुम क्या करोगे, कैसे निकालोगे? तुमको पता है कि लड़ाई इंसानों की हो तो बस इंसानों के साथ ही होगी, कुत्तों की हो तो कुत्तों के साथ होगी, कुत्तों की और इंसानों की लड़ाई तो होने नहीं वाली। तो यानी अगर मैं यहाँ पे एक मास रख दूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? वो अननोटिस से उस पर कुछ नहीं होने वाला। ये फील्ड के वजह से, ये चार्ज की वजह से इसके ऊपर कोई इंटेंसिटी या फील्ड इंटेंसिटी नहीं गिरने वाली। लेकिन अगर मैं एक चार्ज रखूं तो इस पे क्या गिरेगा? ये इसके फील्ड के वजह से एक फोर्स गिरेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो फोर्स इस तरफ गिरेगा, ऐसा। और अगर सोचो मैं इधर रख दूं वो चार्ज को तो फोर्स किस तरफ गिरेगा? ऐसा, है ना? तो देखो ये वाले में और ये वाले में डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन का डिफरेंस है। अगर डिस्टेंस दोनों का सेम हुआ तो ये पॉइंट का यहां से डिस्टेंस और ये पॉइंट का यहां से डिस्टेंस अगर सेम रहा तो फील्ड स्ट्रेंथ सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन अलग अलग रहेगा। यानी फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? अब बात करते हैं कि हम एक्चुअली में फील्ड निकालते कैसे हैं। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल देके मैं समझाता हूं। तुम ये सब कुछ वापस मैग्नेटिक फील्ड में भी डाल सकते हो, इसको तुम ग्रेविटेशनल फील्ड में भी डाल सकते हो। तो मैं चाहता हूं अगर ये चार्ज का फील्ड निकालना,
अगर ये चार्ज का फील्ड निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अगर मैं बोलूं मैं फील्ड निकालना चाहता हूं एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी पॉजिटिव होगा ये चार्ज, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1 कूलम, यूनिट चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 कूलम, और ये मैंने इधर रख दिया, तो इसको मैं बोलूंगा टेस्ट चार्ज, क्या बोलूंगा, टेस्ट चार्ज, और इसको मैं बोलूंगा सोर्स चार्ज, क्योंकि इसका फील्ड है ना, जिसका फील्ड है वो सोर्स चार्ज है, जो मैं एक्सपेरिमेंट के लिए रखा हूं वो मेरा, अच्छा ये नहीं दिख रहा होगा ना, इधर दिख जाता है, ये है सोर्स चार्ज, क्यों लिख दे रहा हूं, सोर्स चार्ज, ठीक है। तो मैंने बोला ये टेस्ट चार्ज है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज के ऊपर ये सोर्स चार्ज Q के वजह से जो फोर्स गिरा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किस तरफ गिरेगा, इस तरफ, राइट। तो ये जो फोर्स गिरा इस चार्ज के वजह से वो हुआ इस पॉइंट में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो ई एफ, मैंने बोला इस पे एक फोर्स गिरेगा, वो फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ये 12th क्लास के लिए, ठीक है, तुम लोग इसको स्किप कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, जिनको समझ में आ रही है वो बने रहे। तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला है, राइट। दिस इज योर Q या फिर योर सोर्स चार्ज, Q2 क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, राइट, 1 कूलम चार्ज है, डिवाइडेड बाय यहां से लेके यहां तक के बीच में डिस्टेंस, रेडियस का स्क्वायर, राइट। तो ये अगर फोर्स हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूं मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो वो क्या हो जाएगा, ये फोर्स से ये 1 कूलम हटा दूंगा तो मुझे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगी। वो कैसे करूंगा मैं, ये फोर्स को डिवाइड कर देते हैं ये टेस्ट चार्ज से, यानी 1 कूलम से, समझ रहे हो। तो ऐसे निकलती है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चलो यहीं तक हमारा सफर था, हम लोग फील्ड कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो चीजें मैं बताया हूं ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये चैप्टर में तुम लोग एप्लीकेशन कर सकते हो जब तुम लेवल के हिसाब से पढ़ोगे। तुम अगर 9th-10th में हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, तो ये तुम समझ सकते हो, ये वाला पार्ट छोड़ के। अगर तुम 11th में हो फिर भी तुम्हें ये जरूरत है, क्योंकि तुम ग्रेविटेशनल फील्ड समझोगे, सिमिलर टाइप ऑफ चीजें हुई है। अगर तुम 12th क्लास में हो तो ये चीज तुम समझ सकते हो, ये तुम्हारे लिए ही है। तो ऐसा सोच के मैंने वीडियो बनाया था, सिर्फ कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है। मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी, और सवाल भी करेंगे। चलो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी से ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। चलो बाय बाय।